Good morning, class. On previous turn, we had studied about agents of pollination, right? कि pollination किन किन sources से हो सकता है, कौन कौन से ऐसे agents हैं जो कि pollination जिनके थ्रू होता है. So we had studied about wind, right? Wind pollination हमने देखा था. We had studied about pollination through water, with the help of water, and pollination through insects. और क्या क्या हमने देखा था? Pollination through birds, pollination through animals, with the help of animals. Okay, so these are the agents, students, which help in pollination. Okay, by these agents, by the help of wind, water, insect, birds and animals, pollen grain reaches from anther to the stigma. Okay, so these agents help in pollination. Okay, but apart from that, students, man means human being. Okay, so man or human being also helps in pollination. Okay, how it helps in pollination? If we want, okay, so अगर हम चाहें तो we intentionally we can take the pollen grain. Okay, we can take the pollen grain and we can sprinkle over the stigma. Okay, so जानबूझ के intentionally man अगर pollination कराता है, man अगर pollination में help करता है, means pollen grains को एक flower से लेके दूसरे flower के stigma पे sprinkle करता है, so that is called pollination by the help of man. Okay, and because students this pollination we are performing this pollination intentionally, जानबूझ के हमने ये pollination किया है, so this is called artificial pollination. Okay, it is called artificial pollination. Okay, so artificial pollination, when we perform, students, artificial pollination, when man or human being perform artificial pollination, when he has to do hybridization, okay, or when human being wants to do the process, wants to perform the process hybridization. Okay, agar if we want to perform the hybridization, then we have to do the artificial pollination. So now you must be thinking that ma'am, what is hybridization? So बच्चों, hybridization क्या होता है? अगर हम दो वेराइटीज को लेके, ओके, दो सपोज एक प्लांट है जिसके अंदर कुछ गुड कैरेक्टर्स हैं और दूसरा प्लांट है जिसके अंदर कुछ गुड कैरेक्टर्स हैं. ओके, सो अगर हम इन दोनों की गुड कैरेक्टर्स को एक प्लांट में ले आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन दोनों प्लांट्स के गुड कैरेक्टर्स किसी एक प्लांट पे आ जाएं और वो एक प्लांट बहुत अच्छी क्वालिटी का हम इन दोनों प्लांट के गुड कैरेक्टर्स को लेके बनाना चाहते हैं. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. ओके, मीन्स ब्रिंगिंग द desired characters of the two plants in one plant body or bringing the desired characters of two organisms in one organism is called hybridization. Okay, suppose this is a plant, suppose this is the mango plant. Okay, and this plant has very good quality roots, very good quality of roots. Okay, and it is another mango plant which is डिजीज रेसिस्टेंट. ओके, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंगो ट्री है, इसकी रूट्स अच्छी नहीं है, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर वीक, बट दिस वेराइटी इज डिजीज रेसिस्टेंट. मीन्स इस मैंगो के प्लांट पे जो मैंगोज होते हैं उनमें जल्दी डिजीज नहीं होती है, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो नहीं लगते हैं. ओके, पेस्ट वगैरह नहीं लगते हैं, डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी है ये, इस प्लांट को जल्दी कोई डिजीज नहीं होती है. और एंड दिस वेराइटी इज having very good quality of roots, and we want to produce a quality of mango, we want to produce a plant of mango in which the roots should also be good and the variety should also be disease resistant. So what we will do, अगर हम ऐसा plant बनाना चाहते हैं जिसमें ये दोनों क्वालिटी हो, उसकी रूट्स भी अच्छी हो और वो डिजीज रेसिस्टेंट भी हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लांट की हेल्प से, ओके, वी विल प्रोड्यूस अ न्यू मैंगो प्लांट. ओके, इन दोनों प्लांट के कैरेक्टर्स से हम एक न्यू मैंगो प्लांट प्रोड्यूस करेंगे. नाउ दिस मैंगो प्लांट विल हैव वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो, एंड इसमें क्या होगा, ये डिजीज रेसिस्टेंट भी होगा और इसकी रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी. ओके, सो नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. दो प्लांट्स की कैरेक्टर्स
दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को लेके किसी एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. एंड द result means after the process, the organism which we get, that organism is called hybrid organism. Okay, that organism is called hybrid organism, like hybrid plant or hybrid animal. So when we want to perform hybridization, at that time we have to perform artificial pollination. Okay, so how this process actually happens, students, let's see. So students, to perform this process, what we do, suppose this is a flower. Okay, this is a flower, and this flower is having its carpel also, and this flower is having its stamen also. Right, so this is the carpel and these are the stamens. ओके, सो फर्स्टली सपोज स्टूडेंट्स ये एक फ्लावर है और इसमें कार्पल भी है और स्टेमन भी है. इट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके, एंड हाँ, वी वांट टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी सीड्स. और एक ये भी फ्लावर है, इट इज़ सेकेंड फ्लावर. ओके, इसके पास भी कार्पल है, इसका कार्पल है एंड स्टेमन्स आर also there. Okay, so अब इस प्लांट में there are some good characters. Okay, good characters in this flower and there are some good characters in this flower. Okay, और हम इन दोनों फ्लावर्स के गुड कैरेक्टर्स को एक प्लांट में लाना चाहते हैं, जिसके लिए हम एक गुड क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं. ओके, वी वांट टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी सीड्स इन विच वी वांट दैट बोथ द कैरेक्टर्स शुड बी देयर इन दैट सीड्स. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्टली इस फ्लावर के किसी एक फ्लावर के हम क्या करेंगे, इस फ्लावर के हम स्टेमन्स को रिमूव कर देंगे. ओके, सो वी विल रिमूव इट्स स्टेमन्स. Okay, we will remove its stamens, and this process, removing male reproductive part, or stamens, removing stamens is called, इस process को क्या बोलते हैं, stamens को remove करना is called emasculation. Okay, removing male reproductive part or stamens is called emasculation. So firstly we will perform emasculation, means we will remove its stamens. After that, students, we will cover this carpel by a wet cloth. Okay, or wet soft cloth or a polythene bag or by any paper. किसी भी चीज़ से हम इस कार्पल को कवर कर देंगे. Okay, why we will cover that carpel? So that any other pollen grain. अच्छा, okay, the first thing, why we have performed emasculation, हमने emasculation क्यों परफॉर्म किया, क्यों हमने इसके स्टेमन्स रिमूव किए, क्योंकि हम इस फ्लावर की गुड क्वालिटीज़ को यहाँ इस सीड्स में लाना चाहते हैं. ओके, सो हम इसके स्टेमन्स को रिमूव कर देंगे, सो डैट ये जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टेमन्स प्रेजेंट थे उनके पॉलन ग्रेन इस कार्पल पे ना आए, पॉलिनेशन ये वाला ना हो और आगे रिप्रोडक्शन ना हो. ओके, क्योंकि हमें तो इस पॉलन ग्रेन को लाना है, यहाँ पे ये वैरायटी चाहिए हमें सीड्स में, इसके भी गुड कैरेक्टर्स चाहिए, तो इसलिए हम इसके स्टेमन्स को रिमूव कर देंगे ताकि इन वाले पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन ना हो. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल कवर दिस कार्पल बाय द हेल्प ऑफ अ सॉफ्ट क्लॉथ और पॉलीथीन बैग और पेपर बैग, सो डैट
कोई और पॉलिन ग्रेन आके विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, बाय एनी मीन्स कोई और पॉलिन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड ना करे इस स्टिग्मा पे और पॉलिनेशन ना हो. ओके, सो आफ्टर सम टाइम when this carpel will be matured, okay, जब ये कार्पल मेच्योर हो जाएगा, so at that time we will remove its bag. ओके, इस जिस बैग से हमने इसको कवर किया था या जिस क्लोथ से हमने इसको कवर किया था, वी विल रिमूव दैट क्लोथ और पेपर बैग और पॉलीथीन बैग. एंड नाउ ये डिजायर्ड वैरायटी, इसके गुड कैरेक्टर्स हमें चाहिए थे, राइट. सो इस फ्लावर के जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए, जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स वी वांट, दैट पॉलिन ग्रेन्स ऑफ दैट डिजायर्ड कैरेक्टर, उस डिजायर्ड कैरेक्टर वाले, उस कैरेक्टर जो हमें चाहिए उसके वाले पॉलिन ग्रेन्स हम लेके आएंगे एंड वी विल स्प्रिंकल ओवर दिस स्टिग्मा. ओके, इस स्टिग्मा के ऊपर, इस कार्पल के ऊपर हम वो पॉलिन ग्रेन्स स्प्रिंकल कर देंगे. सो नाउ दैट पॉलिन ग्रेन उस हमारी डिजायर्ड वैरायटी से पॉलिनेशन हो गया और फिर रिप्रोडक्शन होगा. एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे, दैट सीड्स विल contain our desired varieties. Okay, that seed will contain our desired characters. means इस seed में इस फ्लावर के भी गुड कैरेक्टर्स होंगे और इस फ्लावर के भी कैरेक्टर्स होंगे जो हमने डाले हैं, जो हम चाहते थे कि इसमें हो, वो दोनों कैरेक्टर्स होंगे इसमें, इस सीड में. ओके, सो दिस सीड इज कॉल्ड हाइब्रिड सीड. This seed is called hybrid seed and the process is called hybridization. So students, in this way hybridization we perform. So now in next video we will study the next topic, fertilization. Thank you.